Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi, and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अनुभा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। और अब हेडलाइंस के साथ है अनुभा रोहतगी। Thank you, Sonu. Sensex gains more than 1% to close above 51,000 mark. Nifty climbs above 15,000 level. Rupee appreciates 32 paisa against the US dollar. And oil prices rise amid hopes of economic recovery after US Senate approval to $1.9 trillion stimulus. सेंसेक्स 1% से अधिक बढ़कर 51,000 के ऊपर हुआ बंद। निफ्टी भी 15,000 से ऊपर पहुंचा। रुपया डॉलर के मुकाबले 32 पैसे की मजबूती में रहा और अमेरिकी सेनेट द्वारा $1.9 ट्रिलियन के आर्थिक सहायता के पैकेज को मंजूरी देने के बाद आर्थिक सुधार की आशाओं को बढ़ावा मिलने के बीच तेल की कीमतों में आई वृद्धि। इससे पहले कि हम खबरों का सिलसिला शुरू करें, हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे आज के ऑनलाइन एक्सपर्ट, वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ उदयन रेखा। उदयन, नमस्कार। मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और अब चलते हैं शेयर बाजार की ओर। मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच प्रमुख घरेलू सूचकांक लगभग 1% की वृद्धि में रहे। सेंसेक्स फिर 51,000 के ऊपर पहुंच गया और निफ्टी 15,000 के स्तर से ऊपर बंद हुआ। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1.16% की तेजी से 584 अंक बढ़कर 51,025 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.95% की तेजी से 142 अंक बढ़कर 15,098 पर बंद हुआ। लेकिन सेंसेक्स में तेजी के विपरीत विस्तारित बाजार में गिरावट का रुख रहा। बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.66% के नुकसान में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.41% की गिरावट दर्ज हुई। Benchmark's domestic stocks today logged gains of around 1% amid mixed global cues. The BSE Sensex regained 51,000 mark while the NSE Nifty reclaimed 15,000 level. The Sensex surged 584 points or 1.16% to finish at 51,025 and the Nifty climbed 142 points or 0.95% to close at 15,098. The broader market at BSE declined, underperforming the Sensex. The BSE mid-cap index fell 0.66% while the BSE small-cap index ended 0.41% down. In the Sensex pack, shares of 19 companies gained while 11 logged losses. Kotak Bank surged 3.4%, HDFC Bank climbed 2.9%, ICICI Bank rose 2.8%, HDFC gained 2.7% and Tech Mahindra added 2%. On the other side, Power Grid plunged 2% and ONGC declined 1.2%. NTPC and Dr. Reddy both fell 1%, while Bharti Airtel and SBI ended more than 0.5% down. In sectoral indices, 6 out of 19 sectors logged gains. Banking and finance sector stocks both climbed 1.9%, IT gained 0.9%, and tech sector stock logged gains of 0.7%. On the other hand, metal sector stocks plunged 2.2%, oil and gas declined 2%, and utilities sector stocks fell 1.9%. Power and realty both slipped 1.2%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,257 companies gained while 1,736 fell. Shares of 200 companies remained unchanged. Mr. Ray, last week, the last two sessions were the markets plunged. Yesterday it was a flat market. Today is a healthy rise. What do you attribute it to? I think it's primarily because of investor confidence in, the investors looking at the financials, which of course are a pretty significant part of our markets, at least the index. So while on the one hand the financials sort of went up, the oil pack, they sort of got squeezed a little bit regarding concerns about oil price hike and whether they'll be able to pass it on or not. उदयन, जैसा भी अनुभा कह रही थी कि बाजार में तेजी आई है, 1% से अधिक की तेजी आई है, लेकिन वो तेजी निफ्टी और सेंसेक्स तक सीमित है। अगर हम ब्रॉडर मार्केट को देखें तो वहां हमने गिरावट देखी है मिड कैप और स्मॉल कैप में। सो आपको लगता है कि वो
सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग है? क्योंकि अगर हम आंकड़ों का तुलना करें तो मिड कैप और स्मॉल कैप में जो हालिया रैली आई बाजार में, कहीं ज्यादा उनमें बढ़त आई थी कंपेयर टू निफ्टी एंड सेंसेक्स। सो क्या आपको लगता है कि ये मेरली एक सिलेक्टिव प्रॉफिट बुकिंग हो रही है या कुछ और संकेत दे रहा है बाजार? देखिए, प्रॉफिट बुकिंग तो जरूर लग रहा है, क्योंकि कुछ सेशन से, मतलब कुछ सेशन से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, 3-4 सेशन से। तो ये तो आज का फिगर जब निकलेंगे तब तो पता चलेगा कि वही ट्रेंड आगे भी बढ़ रही है कि नहीं। तो प्रॉफिट बुकिंग हो भी रही है और वो होना भी चाहिए, क्योंकि आप जब आपका शार्प अपमूव होता है तो तब आपको वो बुक करके आप दूसरी जगह लगाने की, रोटेट करके लगाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये जरूर हो रहा होगा। दूसरी बात सुनो, ये बताने लायक है कि जैसे जैसे अमेरिकी मार्केट में, डेट मार्केट में यील्ड्स बढ़ते रहेंगे, वो एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, क्योंकि आप इक्विटी, डेट, कमोडिटीज चारों तरफ प्ले करते हैं, तो वो भी इंटरेस्टिंग ऑप्शन बनता चला जाएगा, क्योंकि वहां पे आपका रिस्क उतना नहीं है। तो वो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर ये इस तरीके से उनका यील्ड बढ़ता रहा, जबकि अभी काफी सेटल हो गया पिछले एक दिन में, तो फिर वो एक होराइजन में एक फैक्टर जरूर बना रहेगा। Mr. Udyanre, you just mentioned the fact that the U.S. bond yields are increasing, and that could be an attractive investment option for the investors. But would that then affect the domestic markets? Because if investors get a better return there, wouldn't it affect, and especially the foreign FPIs and FII inflows? Yeah, that is one of the fears people have, that one is that if things happen very gradually, they go up, yields go up gradually, then it's okay. But I think with everywhere, when things happen very sharply, whether it's the currency market, equity market, they bring with them a whole set of dynamics, whole set of conditions. So what people would be wary of, that if things move very sharply, and that can only be sorted out if Fed starts giving the market some kind of an idea when it expects to turn the interest rate cycle around. So most of the action that's happening in the U.S., I'm not talking about India, but in the U.S., and which is of course affecting us, is basically the market wants to understand till when Fed, the American Central Bank, is going to keep interest rates the way they are, and when is it going to start turning it. So that turn, they need to get a sense, and they're not getting it from Fed, and it makes sense for Fed to keep the cards very close to chest. So this is where the volatility is coming from, and because the volatility is hitting that market, it is also permeating in the equity markets as well. उदिन, जो $1.9 ट्रिलियन स्टिमुलस यूएस में आया है, जिसको काफी स्टेजेस की मंजूरी मिल गई है, एंड होपफुली इट विल बी वेरी सून द रियलिटी, उससे जो एक आशा बंधी है कि यूएस में रिकवरी स्ट्रांग होगी, जिसके चलते हमने आज एशियन मार्केट्स में, यूरोपियन मार्केट्स में तेजी का रुख देखा है, यूएस मार्केट्स में भी बढ़त हुई है। उस संदर्भ में आपने जैसे कहा कि एक इन्फ्लेशन का डर पैदा हो जाता है, जिसके चलते बॉन्ड यील्ड्स पर अपवर्ड प्रेशर पड़ता है। सो हाउ सिग्निफिकेंट डू यू थिंक इज यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जैनेट येलन की स्टेटमेंट जो आज आई है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इन्फ्लेशन के डर के बारे में हम जागरूक हैं, और अगर इन्फ्लेशन होती है तो हमारे पास तरीके हैं उससे डील करने के। सो आपको लगता है कि अगर वहां प्रोएक्टिव अप्रोच रहता है, और जैसा आप कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन होती रहती है इस क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में, तो शायद मार्केट्स में भरोसा कायम रहे? सोनू, मजेदार बात यही है कि ये फेड चेयरमैन जेरोम पावेल ने शुक्रवार को इसी टाइप का एक स्टेटमेंट दिया था, वक्तव्य दिया था, और जैनेट येलन ने उसको रीइंफोर्स किया है। पर ना तो वो स्टेटमेंट के होने के बाद बॉन्ड मार्केट और विचलित हो गई और अनसेटल्ड हो गई, और वो उस चीज को बाय नहीं कर पा रही। लोग, एक्सपर्ट्स का कहना है, जब कोई सेंट्रल बैंक ये कहता है कि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो ऑन एन एवरेज उनको ये लगता है कि ऑन एन एवरेज हिस्ट्री में उनका आर्ग्यूमेंट है कि तब वो कंट्रोल नहीं कर पाती। हमारे देश में, सोनू, हमें थोड़ा डिफरेंशिएट करना पड़ा। हमारे देश में जो इन्फ्लेशन की हमें जो आदत पड़ी हुई है, वो अमेरिका जैसे देश में उनको इस चीज की आदत है नहीं।
कई सालों तक उनके वहां पे मुद्रास्फीति का प्रॉब्लम रहा ही नहीं है। तो वहां पे अगर ये चीज आ जाती है तो नेचुरली ये एक इशू रहता है। और जब भी आप सप्लाई जब स्टॉल हो जाए, जब मान लीजिए जो लॉकडाउन में सप्लाई स्टॉल हो गया था, सप्लाई को जब आप रीस्टार्ट करते हैं तो आपको डिमांड के साथ मांग के साथ मैच करना पड़ता है। तो आप फॉरेन सप्लाई को स्टार्ट नहीं कर सकते, थोड़े प्रॉब्लम्स आते हैं। तो वो जब तक हार्मोनियसली नहीं मूव करेगा तो मुद्रास्फीति का डर, जैसे कि आप सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल बना रहेगा और उसमें उसके अपने कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे। हमारे देश में भी उसके इश्यूज होंगे। तो आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट्स में नॉट ओनली इकोनॉमी लेकिन स्टॉक मार्केट्स में भी एक बबल की सिचुएशन की कुछ डेंजर आपको दिखता है? देखिए वो क्या अगर ऐसा होता भी, बबल तो नहीं कहेंगे, आप ये कह सकते हैं कि ओवर वैल्यूड है कुछ, क्योंकि आप देखिए सोनू, कई स्टॉक्स हैं जहां पे आप उनको उन एरियाज में, उन स्टॉक्स में आप जा ही नहीं सकते, जहां पे इकोनॉमिक, जिन स्टॉक्स में वो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे एक्टिविटी अच्छी नहीं हो पा रही है, तो आप करेंगे क्या? आपके पास इन्वेस्टमेंट का यूनिवर्स तो कम हो गया ना, और पैसा बहुत ज्यादा आ रहा है और आपका इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स कम है और बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है, तो इसलिए वो अपवर्ड मूव होगा। तो इसमें स्मार्टनेस यही होगी जो सब सरकारें और सेंट्रल बैंक कोशिश करेंगे इस सारी इकोनॉमी को चौड़ाई में, इन इट्स फुल वेट एंड इन इट्स फुल फोर्स आप उसको रीस्टार्ट करें। अगर वो हो जाता है तो ये जो बॉटल नेक्स हैं जिसकी वजह से सिस्टम में ओवर हीटिंग होती है, वो प्रॉब्लम आपकी शायद इतनी नहीं बनेगी। Odin, we saw that today, with the Sensex has risen, and we saw that the stocks that did very well were the bank stocks and tech stocks. And this has been a trend we have noticed in the past few weeks also, that bank stocks have been doing well. So you see that as those, sectors where it's safe for the investors to put their money? No, in terms of listed companies, there will never be an issue, and it's also worth pointing out that they are very well regulated. Despite all the PMCs and some of the other things that have happened in the past, we must give credit to our regulators that they have handled these situations pretty well. But having said that, the kind of treatment that will be done to the stressed assets, the people who are holding the banks are holding a lot of loan accounts where people are quite and companies are stressed. How they would pan out, how some of the allowances that were given, of relaxing things when they sort of get withdrawn, how will they perform? What will be the impact of those business, and what will be the impact on the financial institutions and banks? That is to be seen. So that part of the play or that part of the film has to yet play out. So, I mean, it has to be cautious optimism. It cannot be a gay abandon sort of partying that will go on. But उदिन, आपको लगता है कि अब शायद नॉर्मलाइजेशन का टाइम आ गया है, क्योंकि 25 मार्च को ही आगामी 25 मार्च को ही जो सस्पेंशन दिया था आरबीआई ने इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग से, वो पीरियड खत्म हो रहा है। जो बैंक्स का मॉरेटोरियम है वो भी शायद अगस्त में खत्म हो रहा है। तो आपको लगता है कि इस वर्ष भी काफी चैलेंजेस रहेंगे, पिछले वर्ष की तरह नॉर्मलाइजेशन को लेकर बहुत चैलेंजेस रहेंगे? देखिए, जो औहदों में है, जो रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनका कहना है कि इतनी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। पर ये तो वही वाली बात है कि अगर आप मानसून के वक्त आपको बारिश आपको मालूम है हो रही है, अब वो कितनी तेज बारिश होगी आपको कैसे मालूम होगा? जब तक आएगा नहीं तब तक आप कह नहीं सकते। तो ये कोई इंडिया का ही प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम सब जगह है। जब आपने एक क्राइसिस आई, आपने सपोर्ट दिया, अब सपोर्ट का आपको विड्रॉ धीरे धीरे तो करना ही पड़ेगा। नहीं, और वही वो बात यूएस अपनी हिसाब से कर रही है, ब्रिटेन अपने हिसाब से कर रहे हैं, वो उन्होंने बजट पेश किया तो पिछले हफ्ते, हम भी अपने हिसाब से कर रहे हैं। अब अगर कामयाब नहीं होते हैं कुछ इलाकों में तो फिर हम वहां पर संशोधन कर सकते हैं, हम रिवाइज करके एक न्यू अप्रोच कर सकते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। पर ये एक जरूर एक अननोन है और एक बहुत सिग्निफिकेंट अननोन है, क्योंकि आप देखिए मार्केट में आपके बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स जो हैं वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कितना इंपॉर्टेंट वेटेज है आपके इंडिसेस में। तो ये हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि ओवरऑल सेंटिमेंट को भी अफेक्ट करता है। तो पर इसमें कोई खतरे की घंटी अभी बजी नहीं है, पर हमें वहां पे होशियार रहना होगा, चौकन्ना रहना होगा इन्वेस्टर्स को।
निवेशकों को। फाइनेंस मिनिस्ट्री से कुछ फिगर्स कल रिलीज हुई हैं, उस पर भी आपकी टिप्पणी चाहेंगे। पब्लिक सेक्टर बैंक्स की हेल्थ को लेकर उन्होंने कंपैरिजन किया है मार्च 2018 से दिसंबर 2020 का, और उसमें इस पीरियड में नेट एनपीए 7.97% से घटकर 2.32% पे आ गए हैं। जो बैंक्स अंडर प्रॉम्प्ट एंड करेक्टिव एक्शन है वो 12 से घटकर 3 रह गए हैं। फ्रॉड्स लोन्स में 0.72% से घटकर 0.23% आ गए हैं। तो आपको लगता है कि ये एक आरबीआई की तरफ से रिस्क मैनेजमेंट, बैंक्स का रिस्क मैनेजमेंट, अगर हर पहलू पे थोड़ा कॉशन बढ़ाया जाए तो शायद स्थिति संभल सकती है? बिल्कुल, स्थिति कोई आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है और इसमें एक्शन लिया जा रहा था और बैंक्स को अपने बैलेंस शीट क्लीन अप करने की बात की जा रही थी। अब किसको आप किस चीज को आप स्ट्रेस्ड कहेंगे, क्या परिभाषा डालते हैं एनपीए वगैरह, और क्या किसको आप प्रॉब्लमैटिक एसेट्स बोलते हैं, ये काफी कुछ विश्लेषकों के ऊपर डिपेंड करता है। पर यह तो कोई अस्वीकार नहीं करेगा कि ये एक मुद्दा है और एक जबरदस्त मुद्दा है। जब तक बैंक अपने बैलेंस शीट्स को क्लीन अप नहीं करेंगे सोनू, तो तब तक हमारे जो ग्रोथ के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि वो फैसिलिटेट करते हैं। आप क्रेडिट के बगैर आप कैसे आप ग्रोथ को लेके जाएंगे? हमेशा आप स्टॉक मार्केट में आके कैपिटल तो नहीं रेज कर पाएंगे ना, इक्विटी और डेट दोनों होते हैं। तो डेट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बैंक फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि प्रोत्साहन दे पाए, उनके पास वो फंड्स हो जो कि वो लेंड कर पाए। तो ये रिकैपिटलाइजेशन, बैड बैंक बनाना, जितना जो कुछ भी कहिए, ये इन सबको कारगर होने की बहुत सख्त जरूरत है। So Udayan, to conclude the discussion on domestic stock market, जो भी इंडिकेशन सामने आ रहे हैं, जैसे आपने अभी दोपहर को मनी मैटर्स में कहा था कि सर्विसेज सबसे ज्यादा हमारा डोमिनेंट सेक्टर है, 50% से ज्यादा, उसमें भी हम देख रहे हैं कि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के जो फिगर्स है वो 55.3 पे आ गए हैं, जो एक्सपेंशन दर्शाता है। जीएसटी के जो फिगर्स हैं, आज एक रिपोर्ट है कि शायद मार्च में 1.3 लाख करोड़ का एक रिकॉर्ड हिट करने की आशा है। इस सब को देखते हुए आप क्या कहेंगे, स्टॉक मार्केट्स का आगे चलकर आपको क्या प्रोस्पेक्ट्स दिखाई देते हैं, और ब्रॉडली आपकी एडवाइस क्या होगी इन्वेस्टर्स के लिए? देखिए, सबसे पहले तो आपका लास्ट क्वेश्चन पहले ले लेते हैं। आप जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, जो स्पेशलाइज, जो दिन भर स्टॉक ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, तो उनको मार्केट टाइमिंग करने की जरूरत नहीं, स्पेशली ऐसे मौकों में जब आप कभी मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, साइडवेज जा रहा है। तो आप जहां पे आपको साझेदारी है, स्टॉक इन्वेस्टिंग मतलब आप साझेदार बन रहे हैं, स्टॉक होल्डर बन रहे हैं, शेयर होल्डर बन रहे हैं, तो जिस कंपनी के साथ आप साझेदारी करना चाहते हैं, जिसके जहां पे कमाई होगी, जहां कमाई पक्की है, आपको मालूम है वो कंपनी कमाने वाली, आपको दिख रहा है इन्फॉर्मेशन से, वहां पे आप निवेश कीजिए। और बोलचाल टिप्स के ऊपर वो ना कीजिए, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, उससे लेना देना नहीं है। स्टॉक इन्वेस्टिंग में जब आप करते हैं तो आप एक लॉन्ग टर्म, एक पार्टनरशिप की तरह है, मतलब रिलेशनशिप की तरह कहें, वो देखें, तो ये इम्पोर्टेंट ज्यादा हो जाता है। बाकी जहां तक जीएसटी डेटा, दूसरी चीजें के बारे में बात कर रहे हैं, वो करेक्ट है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज थी, उन्होंने डिटॉक्सिफाई किया, प्रॉब्लम एरियाज को निकाला है, टेक का इस्तेमाल किया है, तो वो तो अच्छा करेंगी ही, और उनकी अच्छा करने की जरूरत है, क्योंकि वो अगर कमाई करेंगे तो गवर्नमेंट रेवेन्यूज बढ़ेगा, जो जीएसटी इंडिकेट कर रहा है। और जो स्ट्रेस्ड एरियाज हैं, जहां जो लोग अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, लोग हैं, कंपनियां हैं, वहां पे जाके गवर्नमेंट सपोर्ट दे सकती है। तो वो तो एक बिल्कुल एसेंशियल है। पर इम्पोर्टेंट है, जो ये आपका डेटा कैप्चर नहीं कर पा रहा है, वो इनफॉर्मल जो सेक्टर है, जो बहुत बड़ा है, उसका क्या हिसाब किताब होगा, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। Right, moving on to the other stories. The rupee today strengthened 32 paisa to 72 rupees and 93 paisa against the US dollar. The domestic unit appreciated mainly due to weakness in the American currency. The dollar index, which indicates the US dollar's strength against a basket of 6 other leading currencies, fell 0.43% to 91.92 in intraday trade. Udayan, what do you attribute it to? The rupee has been going from strength to strength, barring a couple of sessions, here and there. But mostly it has been the currency, Indian currency has been strengthening vis-a-vis the dollar. Well, it'll probably remain around this level itself. I mean, I'm not seeing it getting into under a lot of pressure. Of course, the huge issue is
if we get under pressure because of the rising prices of oil, today I believe it went to hit about 69 to a dollar, $1 to a barrel. $69 to a barrel. If that kind of pressure happens, then our currency will definitely come under pressure. But that kind of a pressure that you're talking about of the crude prices that we see is happening. Like yesterday, it went up to 71 at one point when the news about Saudi Arabia came in. So, and experts are saying that they expect the crude prices to go up because the OPEC countries, Saudi Arabia, Russia, everybody else, they at the moment, till April at least, they've decided not to, increase the output. So do you think that would affect the Indian currency? Yeah, it might, but the interesting part is they cannot do it at an unlimited level. See, if you see from the other side, if you become the devil's advocate, if you look at OPEC, what they want to know is whether the demand revival that everybody is talking about, is it genuine or not? Because once you let go of the supply, they want to maintain a price stability. Now for us, the bad news is anything above 60 is not good at all. 69 obviously is not good for us. So what we have to do is somehow weather this period, say in the next 40 days, and hope some sense comes to the suppliers and they see hardcore evidence of a revival happening across the globe, which actually it is. It's going to happen. आइए अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। एशियाई बाजारों में आज अधिकतर बढ़त का रुख रहा। अमेरिका में ट्रेजरी यील्ड यानी सरकारी बॉन्ड पर ब्याज कम होने के बाद अमेरिकी शेयर बाजार के वायदा कारोबार में आई तेजी के अनुरूप एशियाई क्षेत्र में भी तेजी का रुख आ गया। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 1.2% की बढ़त में रहा और जापान का निक्केई सूचकांक 1% बढ़कर बंद हुआ। हांगकांग के हैंगसेंग में 0.8% की बढ़त दर्ज हुई, लेकिन चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 1.9% लुढ़क गया और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.7% के नुकसान पर बंद हुआ। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक यहां तेजी का रुख था। लंदन के फुटसी में 0.7% की तेजी थी, फ्रांस के कैक में 0.3% की वृद्धि थी और जर्मनी का डैक्स 0.4% की बढ़त पर था। उधर चीन, जिसको वर्ल्ड का ग्रोथ इंजन माना जाता है, उसने एक बड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच लिया है। आज एक खबर है कि उन्होंने मौजूदा वर्ष के लिए 6% से थोड़ा ऊपर ग्रोथ रेट अपना दिया है और 3.2% फिस्कल डेफिसिट का टारगेट दिया है। सो ये जो एक बहुत ही कॉशियस अप्रोच वो ले रहे हैं, क्या लगता है आपको ये उनके जो मार्केट में उन्होंने अभी कुछ दिन पहले आशंका जताई थी कि शायद उनके प्रॉपर्टी मार्केट में एक बबल क्रिएट हो सकता है, उसको रोकने के लिए जो ये कंजर्वेटिव अप्रोच है ऐसे समय पे जब पूरे विश्व को जरूरत है फिस्कल सपोर्ट की, सब सेंट्रल बैंक सपोर्ट दे रहे हैं पूरा, कैसे देखते हैं आप इस स्थिति को? देखिए सोनू, जब सपोर्ट देने की, क्योंकि चाइना आप देखिए कर्व में पूरे इस प्रक्रिया में पहले रहा है, इन्फेक्शन पहले हुआ, लॉकडाउन उन्होंने पहले की, रिकवरी उनकी पहले हुई, सपोर्ट उन्होंने पहले दिया, तो इसलिए विड्रॉल की बात भी वो पहले कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि जिस स्टेशन में हम गुजर रहे हैं वो स्टेशन चाइना कुछ वक्त पहले गुजर चुका है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि उनका साइकिल जो है थोड़ा आगे चल रहा है और ये टाइटन करना बहुत जरूरी, नहीं तो ओवर हीट हो जाएंगे। दूसरी बात, आपकी ग्रोथ रेट के बारे में बात की, 6% तो बहुत जबरदस्त रेट है। मेरे ख्याल से वो लोग इस चीज के बारे में हिसाब लगा रहे हैं कि इंटरनेशनल जो डिमांड है, क्योंकि चाइना तो मैन्युफैक्चर करता है वर्ल्ड के लिए, तो सबके पास वो अब्जॉर्ब करने की, खपत करने की वो क्षमता रही नहीं है। तो जब उनकी इकोनॉमी वापस आएंगी और लोग स्पेंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी किसी के पास अगर इनकम है भी दूसरे देशों में, वो खर्च करना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें मालूम नहीं कि उनका इनकम आगे बनेगा कि नहीं। तो वो नॉर्मल एक्टिविटी जब वापस आ जाएगी तो उनका ग्रोथ भी काफी रोबस्ट है उनका। इनफैक्ट उदयन, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि चीन तो कभी डी ग्रोथ पे गया ही नहीं, 2020 में भी उनका पॉजिटिव ही रहा। सो मे बी उनका वो बेस इफेक्ट भी नहीं है। जी नहीं, बेस इफेक्ट थोड़ा है। अगर आप उनके एक्सपोर्ट फिगर देखें, जो मार्च टू मार्च जो आया है वो ट्रिपल डिजिट में, तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब उस वक्त बंद सा हो गया था और जो कि अब ट्रिपल डिजिट ग्रोथ दिखा रहा है बेस इफेक्ट की वजह से। पर हाँ, सही कह रहे हैं, क्योंकि उनका कभी इतना प्लेटो किया नहीं था और उनका जो है इम्पैक्ट लॉकडाउन के जो इलाके थे वो कुछ उन्होंने आइसोलेट कर दिया था। जैसे हमारे यहाँ पे टोटल कंट्री अंडर लॉकडाउन चला गया था, उनको उतनी सीवियर प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं पड़ी और रिबाउंड भी वो लोग उन्होंने फास्ट किया। यही कहानी ताइवान, साउथ कोरिया और वियतनाम का भी रहा है।
Right, moving on to the U.S. markets, the Dow climbed yesterday, led by stocks poised to benefit the most from an economic rebound as the $1.9 trillion COVID-19 relief bill awaited a final congressional vote this week. On the other side, heavyweight tech-related stocks logged losses. The Dow Jones Industrial Average climbed 1%, while the S&P 500 fell 0.5%, and the Nasdaq Composite Index plunged 2.4%. Moving on to oil. Oil prices today gained amid hopes of a recovery in the global economy after the U.S. Senate approved a $1.9 trillion stimulus package. A fall in crude oil inventories in the U.S. also supported the crude prices. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $68.80 per barrel, while WTI crude prices were around $65.50 per barrel. Then we were talking about the rising crude prices. Now, while this may be good news for the exporting countries, for them to, give them a chance to recover, for their, economies to recover, for oil importing countries like India, rising crude prices have like we discussed earlier in the program, has a potential to fan inflation and widen the fiscal deficit, which in turn may force the government and RBI to consider raising the interest rates despite slow growth. Do you see that happening? Do you see this is a real scenario? Well, they may not increase the rates right away, but the pressure will build up. Not right away, but yes, the pressure is, The pressure will build up, and you would see, like, for instance, in the last couple of weeks, you would have seen home loan rates being announced that they have done a cut, etc., etc. Yes. But over a period of time, you can expect the interest rate to firm. It will find a bottom, and there will be that pressure to raise it somehow. Somehow you will try to. If you cannot absorb it beyond the point. So, but I would say that over the period of time, say another 2.5 months, this will get sorted out because there will be whole areas of supply like shale and other areas, producers who will probably come in and, because it starts becoming attractive at those prices. So maybe that there will be some kind of play, and it will not, I don't expect this to remain at 69, 70, like some so-called experts are talking about. It will probably remain somewhere around 60 or so, and with some more supply coming in. Udit, briefly, जो स्टोरी में कहा गया है कि इकोनॉमिक रिबाउंड की आशाएं बहुत बढ़ गई हैं इस कोविड-19 रिलीफ बिल के आने से $1.9 ट्रिलियन, इससे आपको लगता है कि ग्लोबल ग्रोथ को, ग्लोबल ट्रेड को, इंटरनेशनल ट्रेड को एंड कॉन्सिक्वेंटली इमर्जिंग मार्केट्स को भी फायदा होगा? देखिए, कुछ फायदा तो ऑलरेडी हो ही रहा है, ठीक है। दूसरा है कि अमेरिका में अगर वो उनका यही पेस रहा तो सोनू सेकंड जो हाफ में बहुत जबरदस्त ग्रोथ रेट की हम बात कर रहे हैं, और हम जानते हैं अमेरिका ग्लोबल इकोनॉमी का इंजन है। वो अगर खींचता है तो हमारे एक्सपोर्ट, हम अगर वहां पे हम काफी कुछ करते हैं, दूसरी चीजें हम बहुत कुछ करते हैं, वो काफी कुछ खींच के आगे लेके चला जाएगा, जिससे हेल्प तो होगा, पर क्या वाइड रेंजिंग होगा वो शायद ना हो। आइए अब रुक करते हैं बुलियन मार्केट का। वैश्विक बाजारों में वृद्धि के अनुरूप मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल अनुबंध के लिए सोने का मूल्य 480 रुपए बढ़कर 44,700 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब दर्ज हुआ। मार्च अनुबंध के लिए चांदी का मूल्य भी 1,110 रुपए बढ़कर 66,960 रुपए प्रति किलो के करीब रहा। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना तेजी के साथ $1,706 प्रति आउंस पर था और चांदी भी बढ़त दर्ज करती हुई $25.90 प्रति आउंस पर थी। समय समाप्त हो रहा है, सो हमें चर्चा को भी यहीं समाप्त करना होगा। उदयन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शामिल होने के लिए। धन्यवाद। And before we close, a reminder of the headlines. Sensex gains more than 1% to close above 51,000 mark. Nifty climbs above 15,000 level. Rupee appreciates 32 paisa against the US dollar, and oil prices rise amid hopes of economic recovery after US Senate approval to $1.9 trillion stimulus. And that's it in this edition of Market Mantra. Join us tomorrow at 3 p.m. for Money Matters. Till then, this is Sonu Sood and Anubha Rohatgi saying goodbye. Namaskar.